So first let's start with 13th problem. 13th problem, what is given? For an aqueous solution at 25 has twice as many OH minus as pure water. So OH minus are 2 times the OH minus of pure water, and pure water OH minus are 10 raised to minus 7. So in this solution OH minus are 2 into 10 raised to minus 7. So you are asked POH, negative log of this, 7 minus log 2, 6.7. 18th problem. pH of pure water at 0 degree. The Kw at 0 degrees centigrade will be less than Kw at 25 degrees, correct? And H plus concentration is root Kw. So H plus of pure water at 0 degrees centigrade will be less than 10 raised to minus 7, and hence pH of pure water at 0 degrees centigrade will be greater than 7. Okay. सर KW और टेम्परेचर लीनियरली वैरी करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं यार। इक्वेशन लिखाई थी, केमिकल इक्विलिब्रियम में कराया था। केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। ओके सर, वैसे ही जज करेंगे, ठीक है सर। और मुझको एक और डाउट था कि अगर एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल दिया है तो उसका pH 7 होना कंपलसरी नहीं है क्या? नहीं। क्यों सर? न्यूट्रल सॉल्यूशन की भी कंडीशन फर्स्ट लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम में लिखाई थी। H plus equal to OH minus is condition of neutral solution. ओके, सो टेम्परेचर के साथ हो सकता है कि 7 ना हो के कुछ और हो। हाँ, ओके ओके, थैंक यू सर। okay, next is 36. If degree of ionization of water is 1.8 into 10 raised to minus 9, then its ionic product. So water will dissociate like this. So at equilibrium these molarities will be C alpha, C alpha. So ionic product will be concentration of H3O plus into OH minus, that is C alpha square. Molarity of water is 1000 by 18 and its alpha is given 1.8 into 10 raised to minus 9. So ionic product of water is 10 raised to minus 40. So background noise और echo दोनों बहुत ज़्यादा है। यार सबको आ रही है ये बैकग्राउंड नॉइज? यस सर। तो फैन चल रहा है क्या आपके यहाँ? नहीं यार,
Okay, let's continue. Is there still background noise coming? अभी भी आ रही है? Still it is coming.
Okay, let's continue. So 39 तो strongest base, I told you उस type के problems we will do later. Next 42. Dilute HCl solution is saturated with H2S. पॉलीप्रोटिक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड है साथ में. पीएच वैल्यू 3 की दी है. सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है. सो इन दिस केस वी कैन डायरेक्टली ऐड द रिएक्शंस. सो व्हाट वी कैन राइट इन सच अ केस? K1 K2 is equal to H plus square into H2 minus upon H2S. So सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन निकालनी है हम लोगों को. करेक्ट. सब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन विल बिकम 10 raised to minus 7 into 1.3 into 10 raised to minus 13 into H2S concentration 0.1 upon H plus square 10 raised to minus 6. So this will come 1.3 into 10 raised to minus 15. (42) then 45. Equilibrium constant of the reaction A minus plus water going to HA plus OH minus. Equilibrium constant of this reaction is nothing but Kb of A minus is given 10 raised to 8 times Kw. K of Ha पूछा है. Ka of Ha conjugate acid base pair का Ka into Kb is Kw. So that will become 10 raised to minus 8. (47) 49. (47) में क्या दिया है? मोनोप्रोटिक एसिड in a 0.1 molar solution ionizes to 0.001%. Ionization constant K is given as C alpha square by 1 minus alpha. C is given 0.1, alpha is given 10 raised to minus 5. So K comes out to be 10 raised to minus 11. pK of acetic acid is given 4.74. What should be ratio of concentration of acetic acid and acetate ion to have a pH of 5.74?
So for acetic acid or for any weak acid, we can always write this equilibrium. K is given 10 raised to minus 4.74 and H3 pH is 5.74. So what we have to calculate, ratio of acetic acid to acetate ion. So acetic acid to acetate ion ratio becomes 1/10. (53, 55). Problem 53. 100 ml 0.2 molar HCl is mixed with 100 ml 0.2 molar acetic acid. तो मिक्सिंग के बाद HCl की मोलैरिटी हो गई 0.1. बोलो सर 60 वाला कैंसिल कर दीजिए आगे। एसिटिक एसिड की मोलैरिटी हो गई 0.1. पीएच चाहिए रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। तो HCl के इतने स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन के आगे एसिटिक एसिड का तो डिसोसिएशन नेग्लिजिबल मान सकते हैं कि 10⁻⁻⁵ की रेंज में है। लिखना भी है तो लिख लो। चलो ऐसी सिचुएशन हो गई CH3COOH प्लस वाटर गोज टू CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस इक्विलिब्रियम पे 0.11 माइनस अल्फा 0.1 अल्फा 0.11 प्लस अल्फा, क्योंकि H3O प्लस HCl से भी आ रहा है। और एसिटिक एसिड का K रफली 10⁻⁻⁵ की रेंज में है। तो दिस विल बिकम अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा इंटू 0.11 प्लस अल्फा। तो 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। तो यू कैन सी इससे अल्फा आ रहा है 10⁻⁴ की रेंज में, विच इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू 1। तो H3O प्लस कंसंट्रेशन which was 0.11 plus alpha will be 0.1 and pH will be almost 1. बोलो एसिटिक एसिड का एसिटिक बोलो सर ये 10⁻⁵ की रेंज में ये आपको मतलब आपने बिना कोशिश कैसे डाला? एसिटिक एसिड का कितनी प्रॉब्लम्स कर चुके हो अभी तक? हर जगह एसिटिक एसिड का पीएच दिया गया है ना 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। हाँ सर। तो अभी तो पिछली प्रॉब्लम जो कि उसमें ही दिया हुआ था। सर तो ऐसे ले सकते हैं अपने मन से। अरे अपने मन से कहाँ ले रहे हो, है फैक्चुअल वैल्यू है ये तो। सबसे कॉमन ऑर्गेनिक एसिड है ना। ओके ठीक है सर, थैंक यू। 55. Which of the following will occur if 0.1 molar
solution of weak acid is diluted to 0.01 मोलर। तो solution dilute कर रहे हैं, H plus will decrease to 0.01, नहीं, pH will decrease, percentage ionization will increase. This we had written as dilution law, that as solution of a weak electrolyte is diluted, its degree of dissociation increases. Okay, so alpha will increase. 56, 58 और 60 नहीं करना है, 56, 58। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे परसेंटेज डिसोसिएशन 100% हो जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बिहेव एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दो एसिड्स के डिसोसिएशन कांस्टेंट्स दिए हैं, H3O प्लस चाहिए, दोनों की मोलैरिटी दी है, दो वीक एसिड्स का रिलेशन रूट ऑफ C1K1, तो एस्टिक एसिड के लिए करेंगे 1.8 इंटू 10⁻⁻6 प्लस फॉर्मिक एसिड, तो दिस विल बी रूट ऑफ 3.6 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, that will be roughly 1.9 into 10⁻⁻3। इसके बाद 64, 65, एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटाश एलम। देखो पोटाश एलम में दो कैटायंस होते हैं K प्लस Al प्लस, और एक एनायन होता है सल्फेट। ठीक है, एंड दे आर सेइंग कि सोल्यूशन इज एसिडिक बिकॉज you know solution becomes acidic when cation hydrolysis is dominant। तो यहाँ पे cation hydrolysis dominant है, तो अब किस cation की वजह से ये solution acidic होगा? You know K plus comes from strong base KOH, तो K plus की तो hydrolysis होगी नहीं, तो this solution is acidic by hydrolysis of Al3 plus। okay, 65, pH of solution obtained by mixing 100 ml 0.2 molar acetic acid। एसिटिक एसिड और NaOH मिक्स किया तो सोडियम एसीटेट बन जाएगा, और उसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 20 मिलीमोल्स इन 200 ml, that is 0.1। okay, तो salt of strong base weak acid pH will be 7 plus half log C plus half pKa, and pKa is 4.74। तो इसको कैलकुलेट कर लो, log of 0.1 will be -1, तो 7 minus 0.5 plus 2.37। ओके, सिक्सटी 69, 71।
विच इज नॉट एन एसिड सॉल्ट, मतलब जिसका एनायन एसिड की तरह बिहेव ना कर सके, एंड वी कैन सी दैट इज NaH2PO2. H2PO2 minus cannot behave as acid. Okay, this is not an amphoteric ion. H3PO2 was a monoprotic acid. और कौन सा था 71. $100 ml 0.2 molar HCl is mixed with $100 ml 0.2 molar sodium acetate. तो ये रिएक्शन होगा, दोनों के 20 मिलीमोल्स मिक्स किए तो फाइनली NaCl की तो कोई हाइड्रोलिसिस होगी नहीं, तो फाइनली सॉल्यूशन में केवल एसिटिक एसिड है विच इज़ अ वीक एसिड, और उसकी मोलैरिटी हो जाएगी 20/200 दैट इज 0.1. तो pH क्या होगा एसिटिक एसिड के वीक एसिड में H प्लस कंसंट्रेशन √C के 0.1 into 1.8 into 10⁻⁻⁵. तो नेगेटिव लॉग लो, कितना हो गया √1.8 into 10⁻⁻3. तो pH हो गया 3 minus half log 1.8. करेक्ट, रफली 2.87. बोलो सर, मुझे डाउट है कि CH3CO में पूरा रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के देखो क्या है ये। इसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/Ka है, which is very high value, 10 raised to क्या? सर बट ऐसे तो इंफिनिटी आना चाहिए ना, बट वेरी हाई वैल्यू। अरे 10 raised to +5 है, 99.9% से ज़्यादा आ जाएगी प्रोग्रेस। हाँ राइट, गॉट इट, थैंक यू। $75, $78. $75. pH of 0.5 molar बेरियम साइनाइड। तो इसमें साइनाइड आयन की हाइड्रोलिसिस होगी, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है। pH विल बी गिवन एज 7 + ½ log C plus ½ pKa of HCl। तो 7 + ½ log, और मोलैरिटी इसमें लेनी है हमें साइनाइड आयन की। पूरे सॉल्ट की मोलैरिटी दी है 0.5, और एक सॉल्ट में एक मॉलिक्यूल में देयर आर 2 साइनाइड आयंस। तो साइनाइड आयन की मोलैरिटी हो गई 1, और pKb साइनाइड का दिया है 9.3, तो HCN का pKa हो गया 4.7, तो ये हो गया 9.35। 79 ही था ना,
78 था, सॉरी। सेम बेरियम एसीटेट, और जिसका फॉर्मूला हमें ऐसा दिया है CH3COON टाइम्स Ba। इसका pH दिया 8.52, दिस विल बी 7 प्लस हाफ लॉग C। देखो ये C किसकी मोलैरिटी है? दिस इज मोलैरिटी ऑफ द आयन विच इज हाइड्रोलाइजिंग, करेक्ट। तो पूरे सॉल्ट की मोलैरिटी 10⁻⁻² है। तो एसीटेट आयन की मोलैरिटी क्या होगी? 10⁻²n। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर? हो गए कंप्लीट डाउट्स? FBO के सब डाउट्स कंप्लीट हो गए? हो गया कम? चलो, और कोई डाउट नहीं है ना? तो वॉइस बहुत खराब आ रही है क्या आज? हाँ आत्मन बोलो। सर मतलब आपका आवाज सही आ रहा है बट सबका वॉइस ऐसे एको कर रहा है। आई डोंट नो क्या सेटिंग चेंज हो गई है। एवरी डे आई यूज टू टेक विथ सेम सेटिंग्स।
एको बहुत हो रहा है। चलो अच्छा एक प्रॉब्लम लिखो। रंजीत शाही है सबके पास? ऑल ऑफ यू हैव रंजीत शाही? रंजीत शाही है चलो उसका प्रॉब्लम 117 करते हैं। शुड आई राइट द प्रॉब्लम या बुक है सबके पास? Okay. Wait, I will put the photo. So do problem 117.
आ गया आंसर? तो 2 आयंस की हाइड्रोलिसिस हो रही है इसमें। करेक्ट। बोलो। सर फर्स्ट रिएक्शन में जहाँ पे उन्होंने हाइड्रोलिसिस दिया है Al3+ का, उसमें उन्होंने 2H+ दिया है साथ में, तो वो मिस्टेक है या ऐसा हो रहा है? कैटायन की हाइड्रोलिसिस में H+ ही तो बनता है। बट सर उसमें 2 टाइम्स H+ दिया है। हाँ, वो गलत है। हाँ ओके। क्या हुआ है? Al3+ H2O AlOH2+ प्लस H+, एक रिएक्शन तो ये होगा। ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 1.4 इंटू 10⁻⁻⁵ और दूसरा सल्फेट की हाइड्रोलिसिस होगी HSO4 माइनस OH-। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया 10⁻14/1.26 इंटू 10⁻²। अग्रीड? समझ में आया ये? अब कैसे प्रोसीड करोगे इस प्रॉब्लम में? क्या कंसेप्ट लगाएंगे? एनीबॉडी? हाँ बोलो। सर दोनों रिएक्शंस का अल्फा सेम होगा क्या? तो क्योंकि H+OH- दोनों मतलब टू कम ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन जाएंगे तो भाई इसमें वही लगाएंगे। एक वीक एसिड है, एक वीक बेस है, जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है। करेक्ट? याद आया? लास्ट क्लास में लिखाया था ना। तो पहले ऐसे स्टार्ट करो इस प्रॉब्लम को। पहले तो सॉल्ट की मोलैरिटी निकालो। सॉल्ट की मोलैरिटी क्या होगी? 11.4 ग्राम डिजोल्व किया है 100 ml में। मोलर मास निकाला किसी ने, कितना आया इस पूरे सॉल्ट का? हाउ मच इज द मोलर मास कमिंग? 474। 474 अपॉन 0.1। तो ये तो आ गई सॉल्ट की मोलैरिटी। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना। अब Al3+ आयन की मोलैरिटी क्या होगी? C। और सल्फेट की मोलैरिटी क्या होगी? 2C। करेक्ट? तो अब हम इक्वेशंस लिखते हैं। 1.4 इंटू 10⁻⁻⁵ is equal to AlOH2+ into H+
अपॉन Al3+ और दूसरा 10⁻14/1.26 into 10⁻2 is HSO4 minus into OH minus by SO4 2 minus। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं और क्या कंसेप्ट बताया था, जब एक वीक एसिड है, वीक बेस है और दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स नहीं है, तो वाटर के रिएक्शन के साथ उनका जो प्रोडक्ट बनता है वो इक्वल होता है। तो ये और ये तो कैंसिल हो गए। तो क्या इक्वेशन बची हमारे पास, 1.4 into 10⁻⁻5 into 1.26 into 10⁻⁻2 upon 10⁻⁻14 is sulfate upon Al3+ और into H+ upon OH माइनस। और ये अब कैंसिल होके हमें देगा 2 और 10⁻⁻14 को RHS में ले जाओ तो इट विल बिकम H+²। करेक्ट। तो क्या आंसर आ गया H+ का, रूट ऑफ 1.4 into 10⁻⁻5 into 1.26 into 10⁻⁻2 upon 2। तो 0.7 into 1.26 into 10⁻⁻7। करेक्ट। तो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 8.82 into 10⁻⁻4। इसका नेगेटिव लॉग ले लो, पीएच आ जाएगा। ठीक है। क्लियर। और 7 रफली, तो 3.53 के आसपास पीएच आ जाएगा। बोलो सर मास 574। उसका कहीं यूज आया 474 या 574 का, सी तो कैंसिल हो गया ना। हाँ हाँ सर, हाँ सर, सॉरी। चलो नेक्स्ट क्लास वी विल डू बफर सॉल्यूशन। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक सब कंप्लीट है। बाय एवरीबॉडी।